نوجوان یوتھ کیا کرے پھر اس میں کہ وہ خود بھی کنفیوز ہے, لوگ بھی اس کو وہ کر رہے ہیں, ڈیگریڈ بھی ہو رہے ہیں زیادہ تر. دیکھیں اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے مطابق یہاں یوتھ یا اس چیز کا نہیں ہے. اچھا, یہ تو پالیسی میکرز کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. یوتھ کیا کرے گی؟ روڈ پہ چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ پاکستان 70 سالوں سے تو روڈ پہ ہی آ رہا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس کا روڈ پہ چلے جائیں. کبھی روڈ پہ گئے حال نکلا ہے کہ ہم نے پالیسی میکر بننا ہے. جو پالیسی میکر ہے ان کی ہمیں یہ گزارش ہے کہ ہم پیسے کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور انہی اسٹوڈنٹ کو سکھانے کے لیے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ بھی کچھ کریں تاکہ ہمیں اچھی پالیسی ملے. ایسی ٹوٹی پھوٹی پالیسی نہ دیں تاکہ ہم اس سے نہ متاثر ہوں. اچھی متاثر کن پالیسی دیں تاکہ ہم ایک چیز کو جو ہے نا لیول اور اس سوسائڈل کیس کو اور ان بچوں کے مستقبل کو سدھارنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد یوسف آپ سب لوگوں کے ساتھ غازی انسٹیٹیوٹ کے پیج سے مخاطب ہوں. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ لوگوں کو لا رہے ہوتے ہیں, ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو آج جو ہمارے پاس مہمان ہے وہ عدیل حسن جٹ ہے, اور عدیل حسن جٹ کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اس نے یوتھ کے لیے بہت سارا کام کیا ہوا ہے. 10-12 سال وہ یوتھ کے لیے ایک اچھی پلیٹ فارم تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں عدیل بھائی کا کہ اس نے مجھے وقت دیا. تو عدیل بھائی کے ساتھ اگر ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ کون سی یوتھ وہاں سے کس طرح نکل کر آ رہی. عدیل بھائی پہلے اسی موضوع پر میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم پہلے گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ آج کل یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پرائیویٹ ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتا ہوں, وہاں پر تو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. وہ ایک تاثر چھوڑا ہوا ہے نا کہ پرائیویٹ بہت اچھے, گورنمنٹ اچھے نہیں ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں غازی انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا. جیسے دیکھیے آپ کا سوال ہے کہ جی گورنمنٹ اور پرائیویٹ کو پرائیورٹی کی دی جا دیتے ہیں. سر اس میں نا سب سے بڑا جو میٹر ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے. ہم نے لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کر دیا. میں پرائیویٹ سیکٹر کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, میں گورنمنٹ سیکٹر کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اب گورنمنٹ سیکٹر میں سب سے بڑا ایج کیا ہوتا ہے, وہاں فیسز وغیرہ کم ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے بڑے بڑے سیکٹر ہیں جن میں ساری فیسلٹیز ہیں. پنجاب یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے, جی سی ہے, قائد اعظم ہے, ان میں فیسلٹیز بھی ہیں. ایون یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ لیبز کا یا مطلب ایجوکیشن کا کیا معیار ہوگا, چیزیں ہوں گی. لیکن ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈیولپ خود کر دیا. دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں فیسز کم ہوتی ہیں, ہم نے میرٹ اتنا رکھ دیا ہے, سیٹس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جب ہم نے اپنے تعلیم کے معیار کو ہی سفارش بیس کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے, جو کیا کہتے ہیں اسے لینڈ لارڈ طبقے کے لوگ ہیں جو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ فیس پے کر سکتے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, فیسز دیتے ہیں, ڈگری لے کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن سیکھتے کچھ نہیں ہیں وہاں سے. تو مطلب دیکھیں نا, ایک 5 سے 10 مرلے کے اندر یونیورسٹی میری سمجھ سے تو یہ باہر پڑھا, میں بھی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہوں کیونکہ مجھے گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا تھا, میرٹ ہی اتنا تھا, اور دوسرا 35 سیٹیں 35,000 اپلیکیشن. تو یہ ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, انٹر دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں, باہر بھی دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں. باہر جب نکلتے ہیں تو ہمیں دونوں میں ڈفرینس نہیں آتا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو دونوں میں ڈفرینس نہیں ہوتا. دونوں کو ہم کیا چیز ڈیولپ کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے تو اسٹوڈنٹ لاجواب ہونے چاہیے تھے. جو گورنمنٹ کے ہوتے تو ان کی تھوڑی سی کمی اگر ہمیں نظر آ بھی رہی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح, کس انداز میں آپ نے ان کو دیکھ رکھا ہے؟ سر پرائیویٹ سیکٹر کا بچہ کیسے لاجواب ہوگا جب آپ صرف فیس دیں, اٹینڈنس لگائیں, کیفے میں چائے پئیں, سینڈوچ کھائیں اور گھر آ جائیں. جس دن آپ کا پیپر ہو آپ ٹیچر کو پیسے دیں, آپ کا پیپر کلیئر ہو جائے. مطلب گورنمنٹ کا یہ ڈفرنٹ ہے, گورنمنٹ کو آبزرو کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. پرائیویٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہی ایک ڈفرنس ہے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم ہر بندہ لے سکتا ہے, گورنمنٹ میں ہر بندہ تعلیم نہیں لے سکتا. لوگ کہیں گے, اس سوال کا جواب مجھ سے کہیں گے جی کیسے. دیکھیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر چلے جاتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ گورنمنٹ کی ٹرائی کرتے ہیں, نہیں ہوتا. جس بچے کے اچھے, دیکھیں یہاں پیسہ نہیں ہے, یہاں دیکھا جاتا ہے جو 93-94% والا بچہ ہے وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے, جو 70-60-50 والا ہے وہ نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جاتا ہے. ایک بات ہے. تو جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں نا تو چیز الٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بچہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بچہ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے,
चले जाएं इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनी कहेगी नहीं ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ होगा। लेकिन दूसरी साइड पे उल्टा है, तब नहीं सोचते कि यार ये जो बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था। मैं अभी बताता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि ये जो कुछ छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं इनके बच्चों को एडमिशन ही नहीं देना, जो चाहे वहाँ से सिल्वर मेडलिस्ट है या गोल्ड मेडलिस्ट है, यार बच्चा तो पढ़ के आया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है ना कि आपके सवाल से मुझे पता चल रहा है कि यार गवर्नमेंट एजुकेशन पर हम सवाल ज़्यादा उठा सकते हैं, प्राइवेट पर भी उठा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि मैं उसको टैक्स दे रहा हूँ, उसको मैं पिला रहा हूँ, तो मेरे एक सवाल बनते हैं कि यार आप मेरे बच्चों को इतना, गरीब बच्चा कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इतना नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरिट ज़्यादा है। अब वो मेरिट उसका किस तरह बना हुआ है वो भी आपको पता है कि अच्छी खासी ट्यूशन होगी, अच्छे खासे घर से होगा, तो मेरिट उसका बन गया। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और भी है कि बच्चे जब वहाँ से निकल आते हैं तो फिर वो जो प्राइवेट वाले होते हैं, परसों भी एक बच्चे का मेरे पास खुद ही CV आई थी, उसने कहा था कि मैं 25 लाख लगा चुका हूँ, अब मुझे कोई 35 या 40 हज़ार वाली जॉब ला कर दे, तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी। यही देखे ना, अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बात करता हूँ, मेरे सामने की ये मिसाल है, ठीक है, एक साइड पे फास्ट के बच्चे का पड़ा हुआ है CV, एक साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ है, और एक साइड पे आप किसी दूसरी लो क्लास यूनिवर्सिटी का नाम लगा ले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो वो जो जिस जगह इंटरव्यू देने जा रहा है वो पता क्या कहेगा, यार ये फास्ट और पंजाब से मैं उठाऊँ, फास्ट और पंजाब। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी काम है, ठीक है, तो बाहर से ये जो आइल्स और ये जो उनका इंग्लिश टेस्ट होता है, वो भी कहते हैं कि अगर आपका बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी या किसी अब कायदा यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे। अगर कोई बंदा किसी 70, 60, 80 या 150 रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो उसका हम टेस्ट लेंगे। ये देखिए, ये तो एक तासुर जो है ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में गलत नहीं पेश आ रहा, उनके दरमियान में लेकिन विजन उनके पास नहीं है, दोनों के पास नहीं है, उनके पास एम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना खबर है, उनको ये तक पता नहीं कि पाकिस्तान में अभी का सेम इशू क्या चल रहा है। सर अभी तक हमें ये ही नहीं पता कि बाहर 16 ईयर एजुकेशन को ग्रेजुएशन माना जाता है, हम BA को ग्रेजुएशन लेके घूम ही जा रहे हैं, हम ग्रेजुएट हैं। देखें ना, पिछली गवर्नमेंट में ये चीज़ हुई थी कि जी 16 ईयर ग्रेजुएशन होगी, लेकिन उस पर बात खत्म। सर देखिए, रीज़न इज़ दैट कि गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। प्राइवेट अदारों का मसला नहीं है, हमारे मुल्क में जितने लोग एजुकेशन हासिल करने वाले गवर्नमेंट में आ भी नहीं सकते, लेकिन आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे ब्लेम उस सूरत करें ना जब आपकी अपनी कोई पॉलिसी हो। ठीक है, आपकी पॉलिसी है कोई नहीं, मतलब मैंने B.Tech किया हुआ है, अब मैं कल वहाँ एक जगह पे बैठा हुआ था, मैंने कहा जी आप B.Tech को एडमिशन देते हो, कहते हैं नहीं हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो फिर डिग्री बंद कर दें, डिग्री ही बंद कर दें। वेरी गुड। बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें। अच्छा, आपने कहा कि मैं ट्रैवल के साथ भी थोड़ा सा ताल्लुक रखता हूँ, बाहर कोई ये स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग सेवा मिलती है उनको? हाँ जी बिल्कुल, ये भी चीज़ आ जाती है, लेकिन वो लोग उतना डिफरेंस नहीं रखते जितना डिफरेंस हम यहाँ रखते हैं। मैं खुद टर्की गया हुआ हूँ, स्कॉलरशिप पे गया हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे फास्ट नर्स उन लोगों को बराबर रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, अभी भी हमारे पास आई हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो सबको बराबर लेके चलते हैं, लेकिन जिस लेवल पे हम लोगों को डिग्रेड कर देते हैं ना, वो नहीं करते, उनका माइनर पॉइंट का फर्क होता है। नहीं, आप क्या समझते कि इसमें नौजवान का क्या वो है, नौजवान यूथ क्या करे फिर इसमें, कि वो खुद भी कंफ्यूज है, लोग भी उसको वो कर रहे हैं, डिग्रेड भी हो रहे हैं ज़्यादातर। सर देखें, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? मेरे मुताबिक यहाँ यूथ या इस चीज़ का नहीं है। अच्छा, ये तो पॉलिसी मेकर्स को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। यूथ क्या करेगी, रोड पे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान 70 सालों से तो रोड पे ही आ रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसका रोड पे चले जाए, कभी रोड पे गए हाल निकला है। ये पॉलिसी मेकर्स को होगा यहाँ, उसका ये बेहतरीन हाल ये है कि कल को हम में से कोई उस लेवल पे जाता है कि वो पॉलिसी मेकर बन सकता है, तो वो ये सोचे कि मेरे साथ जो इशू हुआ था ना वो आगे किसी के साथ ना। अदिल भाई, इसमें एक और चीज़ है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा करवाती है, सेमेस्टर बेस पर वो सेमेस्टर करवाना चाहती है। अब सेमेस्टर हमने सीखा कहाँ से है, ये पॉलिसी आई बाहर से हुई है। अब वो पॉलिसी पर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ कर आते हैं और वहाँ पर जाकर पढ़ा देते हैं, जब पढ़ाते हैं तो उनसे पूरी नहीं होती उस सेमेस्टर में। ये वाली चीज़ें जो है ना हमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन में डाल देती है कि यार अब ये बच्चा क्या करेगा वहाँ पर, वो उस पॉलिसी का नहीं है। सर अब एक बात मैं आपको बताऊँ, अब ना पढ़ाते नहीं हैं। जब हम पढ़े हैं ना, जब हम पढ़े हैं तब भी कोई नहीं पढ़ाता था। अब पता है दौड़ क्या है, कागज़ का टुकड़ा लेना बस, एक ग्रेजुएट है या ये है या वो है,
लिंक है भाई, लोगों के पेपर दिया, बच्चे को जॉब पे बिठा दिया। कौन सी देखिए काम करता है सिर्फ मजदूर तबका। ये जो हम जैसे पढ़ के बड़ी सीटों पे बैठ जाते हैं, ये तो हुक्म देने वाले होते हैं। तो सर वो यही चीज है, आजकल पढ़ाया नहीं जाता, आजकल सिर्फ ये बताया जाता है कि 4 साल बाद ये टुकड़ा लेना है आपने। बहुत कम लोग होते हैं। नहीं, ये जो आप कहते हैं कि 4 साल बाद एक टुकड़ा लेना होता है, वो भी तो नहीं इसको पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी देखे ना, एजुकेशन सिखाती है, चीज़ें सिखाती है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकिल। आपने इतने सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, उनको ये तक नहीं सिखाया कि जब ये बाहर निकलेंगे उन लोगों ने कमाना कैसे है। एक फील्ड से जो निकालने वाला सिस्टम है ना, वो कैसे, वो नहीं सिखा रहे होते। सर ये फिर मेरी वही बात आ जाएगी, वो सुनने वाले भी कहेंगे कि एक ही बात है, सर पॉलिसी मेकर है एक। अच्छा। आप देखिए आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी टीम तो होगी, आप अपनी टीम को कहेंगे कि यार आपके ज़िम्मे है, आप अगर एक मैस कम्युनिकेशन की क्लास ले रहे हैं ना, तो जो आपका एक वीडियोग्राफर उसका देगा ना, तो आप उसे वो कहेंगे कि यार आपने बच्चे को वीडियोग्राफिंग सिखानी है। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने जाना पॉलिसी मतलब गलती पॉलिसी मेकर की है, आपका चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। सर इसकी मिसाल मैं अब आपको देता हूँ, पाकिस्तान की वेल नोन यूनिवर्सिटी है, वेल नोन यूनिवर्सिटी, उसमें एक बच्चे के पहले सेमेस्टर में उसका जीपीए आता है 1 भी नहीं आता, रीजन बन जाती है आप इसको ड्रॉप कर दें। पहले सेमेस्टर में इसको ड्रॉप करना है, पहले सेमेस्टर में रिजल्ट नहीं दिया, दूसरे सेमेस्टर की फीस भी हो गई है, दूसरे सेमेस्टर के पेपर भी हो गए हैं, ठीक है, पेपर हो के फीस जमा हो के दूसरे सेमेस्टर के बाद उसको बता रहे हैं कि जी आपका ये जीपीए आया, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। साथ वो तीसरे सेमेस्टर की क्लासेस भी ले चुका है, तीसरे सेमेस्टर के पेपर आए हैं तो उसको कह रहे हैं जी नहीं अब आप नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे के साथ इस तरह, लेकिन बच्चे के साथ ये ज्यादती है कि तीसरे सेमेस्टर में उसको बता रहे हैं, टीचर्स उसकी क्लासेस ली जा रही हैं, ठीक है, और उसकी कंप्लेन आगे गई है, उन्होंने कहा जी बच्चे को मतलब उसको किसी जगह पे सेट कर दे, मामले को सेट कर दे, एजुकेशन है। तो वहाँ पे सर एचओडी और कोऑर्डिनेटर जो है ना, उनका आपस में फड्डा चल गया, वो जिद पे आ गए हैं। गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट देखे ना, वही आपकी बात, वही आप कहेंगे ना कि ऑडियंस भी कहेगी कि बार बार, क्योंकि वो भी तो पॉलिसी। सर देखें, एक यूनिवर्सिटी बनती है ना, जी, एक स्कूल बनता है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसकी एक प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई है। देखें अगर एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर लैब होती है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसके एक प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं, उसके प्रॉपर टीचर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर एक गवर्निंग बॉडी होती है, एचओडी ईच एंड एवरीथिंग होता है। मुझे बताएं किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सारा है? किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चली जाएं, देखें एक डिपार्टमेंट जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी जाए ना आप, उसको देख लें, आईबीए को देख लें, मतलब देखें कोई एकड़ में उसका कोई होगा कैंपस, तो यहाँ एकड़ में पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है प्राइवेट, 22 से 24 डिपार्टमेंट होते हैं। वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं सर, रिक्वायरमेट पूरी नहीं होती, माल दिया जाता है, रिक्वायरमेंट्स पूरी लिखी जाती हैं। अब किस चेयरमैन के पास टाइम है वो जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विजिट करे? मुझे नहीं, वो नीचे वाले जाते हैं बस। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि यार इसमें जो है ना, हम जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट या एजुकेशन या इन चीज़ों में। सर आप प्राइवेट बैठ के इस पे प्रॉपर पॉलिसी बनाएं। सर बाहर की ममालिक में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, फीस वाकई प्राइवेट की ज़्यादा आती है, क्यों? रेंट उसने देना होता है, सारे मामला उसने करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट पे वजन होता है सारा, ठीक है, वो टैक्स से पैसे आ जाते हैं, फीसेज आ जाती है, सारा कुछ। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर पे वजन होता है, लेकिन वो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। अब ये देखें कोविड में देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो थी ना, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी फीस सिस्टम बजरिया बैंक है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका फीस सिस्टम बजरिया बैंक है, उनके पास तो फीस आ गई, और वो गरीब जिनका फीस सिस्टम बैंक का नहीं है वो कहाँ? अब मैं मिसाल देता हूँ, देखें हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर ये करता है, यार हम प्राइवेट सेक्टर में ना पता है किसको देखते हैं? बड़े बड़े स्कूल्स को देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल्स को। तो वो बड़े जो स्कूल्स हैं ना, उनकी फीसें ज़्यादा, हम कहते हैं कि वो ये कर गए, उनका सारा बैंक का। मैं देख बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं जिनको कोविड में फीस आती रही है, वालदैन को पैसे चला जाता था वो। अब मुझे उस स्कूल के बारे में बताएं जिसमें 5वीं 6वीं या 7वीं तक सिर्फ क्लास है, और वो एक गांव का स्कूल है जिसमें 7वीं क्लास के बच्चे की फीस 1000 रुपया है। अब वो वालदैन को कहेंगे कि 1000 रुपया जाके बैंक जमा करवा के आएँ, तो वो 1000 रुपया बैंक जमा कराएं, 100 रुपये का पेट्रोल लगाएं, जलालत अलहदा। तो उन स्कूल्स का बताया ना क्या किया जाए? कोविड में ये तो बंद हो गए, इनको तो बैंक के जरिए फीस आ गई। उन स्कूल्स का बताया ना जिन्होंने अपनी ये बिल्डिंग है, इनका रेंट देना है, ये सारा कुछ करना है, उस प्राइवेट स्कूल वाले का बताया ना गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया। गवर्नमेंट तो फिर वही बात है ना, नजर तो वही आता है ना, बड़े बड़े स्कूल, तो वो छोटे स्कूल वालों को बताया ना उनका नुकसान कौन पूरा करेगा? ये चीज़ है। तो इसी तरह ही हम डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे।
जिस तरह हमने बात की एजुकेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं, इन दोनों को हमने बात इख्तिताम पर ये पहुंच गए हैं कि हमने पॉलिसी मेकर बनना है। जो पॉलिसी मेकर है उनकी हमें ये गुजारिश है कि हम पैसे कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए और इन स्टूडेंट को सिखाने के लिए हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप भी कुछ करें ताकि हमें अच्छी पॉलिसी मिले, ऐसी टूटी फूटी पॉलिसी ना दें ताकि हम उससे ना मुतासर हो, अच्छी मुतासर कुन पॉलिसी दें ताकि हम एक चीज़ को जो है ना लेवल और उस सुसाइडल केस को और उन बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारना चाहिए। क्योंकि एक मुल्क जब बनता है तो वो अपने लोगों को चला कर चलता है और आप ही हमारे लोग हैं जो कि चला कर चलाने वाले हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए लोगों के साथ। वस्सलाम।